Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is the committee system in the Constitution of USA, and we will also talk about the uh, amendment procedures and how the bills are presented and how the bills are uh, accepted, changed, passed, etc. And at the end, we will talk about the judiciary system. And today's topic is going to be the last topic of the Constitution of USA, because before this we talked about the salient features of the Constitution of USA. We talked about the salient powers and implied powers. We talked about the Senate, we talked about the Congress, House of Representatives, with a particular focus on past papers. We discussed the powers of the executive. So only one organ is left. Before this we talked about two organs like Congress, legislature, and the second one is executive. So one organ is remaining, and that is judiciary. So we will also talk about judiciary in today's class, and two contributory topics will also be discussed, so that you may know the procedures of legislatures in more details. So kindly, if you are listening to me, like this live broadcast, share this lecture in our Safe 6 WhatsApp group or any other place where you deem it appropriate. Share it, invite your friends, register friends, right? So far I don't see any comments, likes, and this is somehow quite interesting that you guys are not regular, or what we say, that you guys are not let me invite some of your friends myself. I have invited many of your friends, those who could I invite, so I invited them. Now it is your turn to bring them to the class. The beauty of the online class is that you can invite your friends by sending invitation messages, and that is a kind of instant push to them. Teacher has also this power, so that teacher is also 24 hours connected to the students, not only for 1 hour or just in the class or physical environment. That is the beauty of the class. The lectures are saved, recorded, and the students can easily watch them later on. But anyhow, I just always urge my students to attend the class online, because online, here you can see me, I can read your comments, and if there is any query you can ask instantly, and you save your time. Because when you listen this lecture later on, so this 1 hour is gone, and then you give another hour, and after that you will be listening to it just like a radio. So that might not be that much beneficial, productive, as compared to listening to me online, live, in live broadcast. So if I am clearly audible, kindly let me know, then I will come to the topic. And our first topic is
the committee system in the USA, and we will also compare it with that in England. Yes, so let's begin. अब सवाल पहले तो ये है कि जब लेजिस्लेचर मौजूद है, जब लेजिस्लेचर मौजूद है, कानून साज इदारा मौजूद है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, सेनेट भी है, तो फिर कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? एक सवाल तो ये बनता है। तो फिर इसका जवाब ये है कि कमेटी जो सिस्टम है ये एफिशिएंसी के लिए लाजमी है और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए लाजमी है। कैसे? जैसे हम सब जानते हैं कि सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते। पाकिस्तान की मिसाल ले ले आप, के पास जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसमें कोई किसी के पास जाली डिग्री निकल आती है, तो किसी के पास जो है इंटरमीडिएट डिग्री होती है, चाहे वो केपी में 2013 से 15 तक 18 तक वज़ीरी तालीम जो था, इतना बड़ा ओहदा, और वो भी वज़ीरी तालीम, और उसके पास जो है तालीम थी ही नहीं, मतलब 12th क्लास इंटरमीडिएट पास था। ठीक है। अब एक शख्स को हमने वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दिया और वो साइंस को जानता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी को जानता ही नहीं है, बस हमने उसको बना दिया। ठीक है। तो इसी तरह पार्लियामेंट के जितने भी लोग होते हैं, सारे के सारे लोग टेक्निकल भी नहीं होते, सारे के सारे लोग एक्सपर्ट भी नहीं होते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग उसमें होते हैं, काबिल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब कोई बात करनी है, कोई कानून साजी करनी है, कोई बिल पास करना है, तो उसके लिए तो ज़ाहिरी बात है एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। टाइम भी सेव हो जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ जाएगा और एफिशिएंसी भी आ जाएगी, वो चीज़ गलत भी नहीं होगी, वो पॉलिसी भी ठीक होगी। तो उसके लिए फिर ठीक है, सारा का सारा कानून साज इदारा जो है वो तो लेजिस्लेचर है, लेकिन अपने अंदर जो है वो कमेटी सिस्टम बनाए, और ये तकरीबन हर एक मुल्क में है, यूएसए में भी है। तो यूएसए ने फिर ये काम किया कि हर चीज़ के लिए इसने कमेटी बना दी। पहले तकरीबन इवन आप लोगों की किताब में लिखा भी है कि 1946 से पहले यहाँ पर जो है 45 कमेटीज़ होती थी, जो कि अब एक्ट ऑफ 1946 के बाद रिड्यूस होकर 19 कमेटीज़ पर आ चुकी है। तो लेजिस्लेचर का जो काम है, कानून साजी का जो काम है, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट नॉलेज के अंदर होता है, साथ में एफिशिएंसी भी उनको मिल जाती है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि कानून हमेशा सेम तो नहीं रहता, वक़्त के साथ साथ लोगों के नज़रियात भी चेंज होते हैं, चेंज आता है मुल्क में हालात भी, और जो पुराने कानून हैं वो आउटलिव भी हो जाते हैं, मतलब आउटडेटेड भी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं वक़्त के साथ साथ। सही। कुछ तो ऐसे भी कानून होते हैं जो कि ख़ास वक़्त के लिए है। आप सपोज़ एक कानून कोविड-19 के लिए आपने बनाया, सही, जैसे लॉकडाउन का, कि हुकूमत के पास इमरजेंसी पावर है किसी भी जगह पर, लेकिन जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हो, कोविड-19 ख़त्म हो जाए, बस हुकूमत के ये पावर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर किसी को ज़बरदस्ती तो वो दुकान नहीं बंद कर सकता, या किसी का स्कूल या किसी का कॉलेज, ज़बरदस्ती तो फिर नहीं है हुकूमत के पास। ठीक है। लेकिन अब तो खैर मजबूरी है, तो अगर कोई कानून साजी इस वक्त की जाए दैट्स ओके, बट आफ्टर कोविड-19 इज़ ओवर, बात ख़त्म, बस ये कानून ख़त्म हो जाएगा, आउटलिव हो जाएगा। तो कमेटीज़ का होना या कमेटी सिस्टम का होना लाजमी है एफिशिएंसी के लिए और अच्छे फैसलों के लिए।
और वजह भी आप लोगों को बता दी। अब अमेरिका में हमारे पास कौन कौन सी बड़ी कमेटीज है? एक को कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में टोटल मेंबर्स जो है 12 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स। और स्टैंडिंग कमेटी को हाउस इन मिनिएचर भी कहा जाता है, हाउस इन मिनिएचर, या एक मिनी लेजिस्लेचर, एक छोटा सा लेजिस्लेचर। उसके पास पावर्स भी बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई मसला आता है तो ये 12 मेंबर्स जो है ये बड़े काबिल लोग होते हैं, और ये फिर कानून साजी और रिपोर्ट और या कुछ भी है यही लोग करते हैं। अच्छा, जब एक बिल पास होता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी के पास आता है। स्टैंडिंग कमेटी ने उसको रिपोर्ट उस पर डिस्कशन करनी है, फिर रिपोर्ट तैयार करनी है, और रिपोर्ट जो है फिर पार्लियामेंट में या कांग्रेस में पेश करनी है। अच्छा, इसके पास ये भी इख्तियार होता है कि चाहे तो उस पूरे बिल को रिजेक्ट करे, चाहे तो उसको सिरे से तब्दील करे, चाहे तो उसको उसी तरह ही लौटा दे कि बस आप लोग उस पर मजीद कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और चाहे तो अपने साथ रख ले, बिल्कुल अपने मौत ही फिर मर जाता है, और कोई उससे फिर पूछ गुछ करने वाला नहीं है कि आप हमें रिपोर्ट क्यों नहीं देते। इतना पावर भी है इनके पास, तो इसलिए इसको रियल लेजिस्लेचर या लिटिल लेजिस्लेचर, या जो है आप लोगों की किताब में ज़बरदस्त टर्म यूज़ हुआ है कि हाउस इन मिनिएचर या मिनिएचर लेजिस्लेचर, ये भी इस्तेमाल हुआ है। ये स्टैंडिंग कमेटी के इख्तियारात है। अच्छा, दूसरी कमेटी सिस्टम जो है वो है कमेटी ऑफ रूल्स। ठीक, उसके पास भी बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे 1911 से पहले, फिर एक एक्ट पास हुए, इसके इख्तियारात कम हुए, लेकिन एनी हाउ आज भी इसके पास इख्तियारात है। और इसका जो चेयरमैन साहब होता है वो है स्पीकर साहब। तो स्पीकर का काम क्या है? पूरी जो असम्बली होती है उसका डेकोरम का ख्याल रखना, ठीक है, और रूल्स रेगुलेशन का, असम्बली के रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखना। तो ये कमेटी भी वही फंक्शन अदा करती हैं, टू मेक द रूल्स अ प्रोसीजर फॉर द हाउस, कि हाउस का प्रोसीजर क्या होगा, और इट मे इंडिकेट द हाउस इज टूवर्ड द क्लासेस ऑफ द बिल शैल बी अमेंडेड, कि कौन सी चीज़ें अमेंड करनी है और कौन सी चीज़ें अमेंड नहीं हो सकती, किस चीज़ पर डिबेट करनी है, कितनी डिबेट करनी है, और किस चीज़ पर डिबेट नहीं करनी। तो ये कमेटी ऑफ रूल्स जो है वो ये रूल्स बनाती है, ठीक है। तो ये भी एक अहम काम है। अब सारे के सारे लोग बैठ जाएं कि हमारे लिए रूल्स, तो रूल्स बनाना तो मुश्किल काम है, तो चंद काबिल लोग ही बैठ जाते हैं, एक कमेटी स्पीकर की ज़ेर निगरानी बस शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और कमेटी भी है, उसको सेलेक्ट कमेटीज़ कहते हैं। दे आर सेलेक्टेड बाय द स्पीकर फ्राम टाइम टू टाइम, ठीक है, और इसको एक ख़ास पर्पस दिया जाता है, और एक उस पर्पस के फ़ौरन ये कमेटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, उसको सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। एक और कमेटी भी है, उसको कमेटी ऑफ द होल हाउस, पूरा जो हाउस है उसकी कमेटी, और उसमें 100 मेंबर्स होते हैं। और ये कब बनती है? जब बात थोड़ी सी बड़ी नोयत की हो, मतलब बजट के हवाले से हो, या जो है मसला थोड़ा गंभीर हो। मिसाल के तौर पर 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस और सेनेट अपर हाउस, दोनों में एक बात पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, मुखालिफत आ जाए, तब जो है उसके लिए एक और कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, कमेटी ऑफ द होल हाउस, और फिर वो जो है उनके ग्रीवेंसेस वगैरह देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं, और एक मुफाहमत पर दोनों को लाने की भी कोशिश की जाती है। अच्छा, अब अगर हम इसको कंपेयर करें ब्रिटिश के साथ, तो अमेरिका में कमेटीज़ को पावर दिया गया है, ये एक प्राइमरी हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये जो चीज़ पार्लियामेंट को दे रहे, पार्लियामेंट उस पर अमल करती है। ब्रिटिश में क्या होता है, उसको सेकेंडरी पावर दिया गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स या कैबिनेट के पास इख्तियार हैं, वो चीज़ें बना लेती हैं और फिर इनको रिवाइज करने के लिए दे देते हैं।
तो ये एक फ़र्क हो गया। अमेरिका में ये लोग सब काम करते हैं और ये रिपोर्ट पेश करके पार्लियामेंट भेजते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में या इंग्लैंड में ऐसा होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स सब कुछ करता है और फिर कमेटी को रिवाइज करने के लिए देते हैं कि आप लोग उसमें टेक्निकलिटीज ढूंढे कि इसमें कोई गलती तो इन पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं की है। अच्छा, एक फर्क ये हो गया। दूसरा ये है कि जो ज्यादा पावर है इंग्लैंड में वो तो एग्जीक्यूटिव के पास होता है, मतलब कैबिनेट के पास होता है, और जो कमेटीज हैं वो भी उसी के ज़ेरे निगरानी काम करती हैं। और एज कंपेयर टू द अमेरिका या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव अलग है, सदर और उसका कैबिनेट अलग है, उसका पार्लियामेंट और कांग्रेस के कामों में जो है काम ही नहीं है। तो ये लोग ज़्यादा पावरफुल है, ये कमेटीज जो है ये एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। सही, तो ये भी एक डिफरेंस आ गया। एक और डिफरेंस भी है कि इन इंग्लैंड द बिल्स आर सेंट टू द कमेटी आफ्टर देयर प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द हाउस एट द सेकेंड रीडिंग स्टेज, कि जब प्रिंसिपल सब कुछ तैयार हो जाए फिर ये उस कमेटी को भेजा जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, पहले इनको भेजा जाता है, फिर ये लोग जो है प्रिंसिपल्स और ये उसूल और रूल्स रेगुलेशन सब कमेटीज बनाती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। इन इंग्लैंड द कमेटीज आर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिशियंस इंटरेस्ट। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कमेटीज बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं और जो पॉलिटिशियंस है ये बिल्कुल इम्पार्शियल होकर कमेटीज को चलाते हैं। कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अहमियत नहीं दी जाती। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो पार्टी मेजॉरिटी है, ठीक है, या पार्टीसनशिप जिसको हम कहते हैं, पार्टीसनशिप, कि पार्टी को, अपनी पार्टी को अहमियत देना, अमेरिका में अपनी पार्टियों को अहमियत दी जाती है। ठीक है, पेज नंबर अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो है 222, 222, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट, अब अगर आपने बुक खोला है तो पेज 223 पर आ जाएं और वहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, कानून किस तरह तैयार होता है, बिल किस तरह पास होता है, कौन से रीडिंग्स उसे दिए जाते हैं, कितने रीडिंग्स दिए जाते हैं, किस कमेटी से गुजारा जाता है, सेनेट में कब जाता है, एग्जीक्यूटिव में कब जाता है, और अप्रूवल किस तरह मिलती है और रिजेक्शन किस तरह मिलती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे और ये भी एक अहम, खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये तो अहम है। तो पेज 223 पर आ जाएं अगर आप लोगों के पास बुक है और ओपन किया है। अच्छा, बिल का जो इंट्रोडक्शन है वो किसी भी हाउस में हो सकता है अमेरिका में, ठीक है, एक्सेप्ट द मनी बिल्स। मनी बिल्स आर ओनली इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोअर हाउस। बाकी जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो कहीं भी सेनेट से भी इनिशिएट हो सकते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी इनिशिएट हो सकते हैं। पहले जो बात है इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाती है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ बिल को ड्रॉप किया जाता है, चाहे रिटन फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, ठीक है, और उसको मतलब हाउस में लाया जाता है कि ये इस चीज़ पर हमने कानून साजी करनी है, एक्ट है, बिल है, जो भी है। फिर उसको जो है फर्स्ट रीडिंग दी जाती है और ये फर्स्ट रीडिंग जो है ये फिर फॉर्मल स्टेज यहाँ से शुरू। इंट्रोडक्शन इतना फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल स्टेज फर्स्ट रीडिंग से शुरू हो जाती है। और फर्स्ट रीडिंग जो है ये असल में ये लिखते तो फॉर्मल है लेकिन इतना फॉर्मल नहीं है, मतलब क्विकली सिर्फ वो टाइटल इंट्रोड्यूस किया जाता है और टाइटल के बाद जो है क्विक एक रीडिंग दी जाती है कि ये चीजें हैं, इसमें बस बात खत्म, टेक्निकलिटीज डिस्कस नहीं की जाती। फिर इसको जो है कमेटी स्टेज में भेजा जाता है। अब कमेटी स्टेज क्या करती है, कमेटी जो है स्क्रूटनाइज अ बिल इन ऑल इट्स डिटेल्स। फिर जितने भी डिटेल्स होते हैं इस बिल के उसको स्क्रूटनाइज करती हैं, वन बाय वन, क्लास बाय क्लास, हर एक चीज, ठीक है। इसमें बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, कांग्रेस लाइब्रेरी भी जो है इवन उसके मेंबर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं
और फिर जो है एक ख़ास इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो अपना स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके वो भेजती हैं, और इस दौरान जो है पब्लिक ओपिनियन को भी देखा जाता है कि पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है, ये भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अच्छा, कमेटी के पास कुछ इख्तियारात है। क्या क्या इख्तियारात है? 4 इख्तियारात हैं। एक ये, इट मे फेवरेबली रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस विदाउट एनी चेंज व्हाटएवर। जो भी चेंज हो नहीं करती, बस जैसा है वैसा ही भेज दे के बस ठीक है, आप लोग इस पर आगे कार्रवाई करें, सेकेंड रीडिंग शुरू करें। एक बात। दूसरी बात, इट मे रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस विद सजेस्टेड अमेंडमेंट्स, या उसमें फला चीज अमेंड करें और वापस भेज दें। एक दूसरी बात। तीसरी बात, इट मे कंडेम द बिल होल सेल एंड मे सब्स्टिट्यूट अ न्यू बिल। पूरा का पूरा बिल जो है बस उसको रिजेक्ट कर दें और एक नई चीज उसको देने के नई कानून साजी करें, नया बिल ले आए। ये ठीक नहीं है। मुकम्मल भी इसके पास इतना पावर होता है कमेटी के पास। और चौथा पॉइंट फिर ये है कि इट मे नॉट रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस एट ऑल, कि बस इसको बिल्कुल हाउस को भेजे ही नहीं, अपने साथ ही रख ले। तो ये इख्तियार भी है इस कमेटी के पास। जैसे मैंने स्टैंडिंग कमेटी की बात की, वही स्टैंडिंग कमेटी के फंक्शंस यही है कि बिल को जो है रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं, और एज अ होल एक्सेप्ट करके वापस भेज भी सकते हैं। ये 4 फंक्शंस है इसके पास। फिर ये यहाँ से जब ये सारा मामला ख़त्म हो जाता है और एग्रीमेंट आ जाती हैं, सो इफ द बिल इज रिपोर्टेड बैक टू द हाउस द सेकेंड रीडिंग इज रिज्यूम्ड। बस बिल तैयार हो गया, भेज दिया गया, फिर सेकेंड रीडिंग जो है शुरू हो जाती है। सही। सेकेंड रीडिंग में जो है क्या होता है, द बिल इज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड अपॉन। मुकम्मल तौर पर इसको डिस्कस भी किया जाता है और इस पर खूब डिबेट भी होता है। एंड व्हेन द बिल इज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द सेकेंड रीडिंग स्टेज, इट इज जनरली प्रिंटेड बिफोर बीइंग सबमिटेड फॉर द थर्ड रीडिंग। फिर इसको प्रिंट किया जाता है, प्रिंट ना भी करे तब भी ठीक है। फिर थर्ड रीडिंग आ जाती है और थर्ड रीडिंग पर इतना जो है डिटेल में नहीं जाते, बस सिर्फ उसको जो है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का जो वोट है वो मिल जाता है, और उसके बाद फिर इसको अपर हाउस मतलब सेनेट में भेजा जाता है। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। अब सेनेट के पास क्या इख्तियारात हैं? सेनेट इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्टेंस के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। सेनेट इसमें अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकता है, वो वापस इसको भेज देगा लोअर हाउस को, लोअर हाउस फिर जो है वही 3-4 स्टेप्स से गुजारेगा और अमेंडमेंट करके फिर सेनेट भेजेगा, या सेनेट जो है इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट भी कर सकता है, और इस रिजेक्शन के बाद ये कानून सेनेट एग्जीक्यूटिव के पास भी नहीं भेजा जाएगा और ये किस्सा वही ख़त्म हो जाता है। एनी हाउ, लोअर हाउस से भी पास हो गया, अपर हाउस से भी पास हो गया, सदर के पास पहुंच गया। सदर के पास इख्तियार है कि इसको अप्रूवल ले ले और ये लॉ बन जाए। सदर के पास ये भी इख्तियार है कि इसको रिजेक्ट कर दे। पॉकेट वीटो भी उसके पास होती हैं, वीटो भी है, वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। रिजेक्शन के बाद उसको वापस जो है कांग्रेस भेजा जाता है, और कांग्रेस अगर 2/3 मेजॉरिटी से दोबारा से उसको पास कर ले तो सदर के पास जो है दोबारा सब वीटो का जो पावर है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, सदर के पास ये भी इख्तियार है पॉकेट वीटो को भी थोड़ा सा गौर से पढ़ ले, शायद शॉर्ट नोट भी आ जाए पेपर में कि व्हाट इज पॉकेट वीटो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो जो है ये 10 दिन के लिए होता है। सदर के पास बिल जाता है, सदर उसको मेज पर रख देता है, जेब में डाल देता है, ठीक है। वो इस पर न रिजेक्शन देता है ना अप्रूवल देता है। 10 दिन के दौरान अगर कांग्रेस का सेशन खत्म हो जाता है, उस बिल पर बात करना ही छोड़ दिया जाता है, तो बस ये बिल जो है अपने मौत मर जाता है। अगर नहीं तो 10 दिन के बाद ये खुद ब खुद अप्रूव हो जाता है, ठीक है। सदर के साइन के बगैर भी ये कानून बन जाता है। एनी हाउ, इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, जो सदर के पास है कि 10 डेज तक वो किसी भी बिल को बिना किसी को बताए हुए अपने साथ डिले कर सकता है, रख सकता है। और अगर इस दौरान सेशन खत्म हो गया कांग्रेस का, तो बस बिल
खुद ब खुद मर जाता है, वो फिर पास नहीं होता। अच्छा, ये किस्से कहानियां तो है ऑर्डिनरी बिल के। थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है फाइनेंशियल बिल्स के। उसके लिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो लोअर हाउस से जनरेट होता है या इनिशिएट होता है, और उसके लिए जो है वो सदर की निगरानी में होता है, और डायरेक्टर ऑफ बजट जो है उसको प्रिपेयर करता है। फिर उसके लिए भी कमेटीज बनाई जाती हैं। एक कमेटी को कहते हैं रेवेन्यू कमेटी, जो रेवेन्यू पर बनाती हैं कि हमने एक चीज़ को इतनी रेवेन्यू कलेक्ट करनी है। जाहिर बात है, जब आपने बजट पेश करना है तो पहले तो अपना जो है एस्टिमेट लगाना है कि इस साल हमने कितना कुछ कलेक्ट करना है, चाहे 16 ट्रिलियन डॉलर्स है या 19 ट्रिलियन डॉलर्स हैं या 20 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, इतना जो है हमने रेवेन्यू। अब इसको लगाना भी है, चलो आपने कलेक्ट तो कर लिया, रेवेन्यू आपके पास आ गया, पैसे आपके पास आ गए, अब लगाना भी है। लगाने वाली कमेटी को जो है द कमेटी ऑन वे और मीन्स या कमेटी ऑफ अप्रोप्रिएट, यहाँ पर अगर नाम में गलत ले रहा हूं तो चलो उसको ठीक कर लेते हैं, द कमेटी ऑन अप्रोप्रिएशन। द कमेटी ऑन अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि वो कमेटी जो स्पेंडिंग आपको बताती है कि आप इसको खर्च के साथ, डिफेंस को कितना देना है, एजुकेशन को कितना देना है, डेवलपमेंट को कितना देना है, गरीबों को कितना देना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने हालिया जो है अपना बजट भी देख लिया। ठीक है, एक बजट पास हुआ, उसमें मुलाजिमीन को भी दिया गया, फौज को भी दिया गया, गरीबों को भी दिया गया, एहसास प्रोग्राम, बिलियन ट्रीज और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अपने साथ जहन में रखें, उस पर भी आप फिर आर्गूमेंट्स कर सकते हैं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। ठीक है, एनी हाउ इसका तरीक़ेकार फिर इन दो कमेटीज के हाँ होता है, और फिर जब ये यहाँ से पास हो जाए फिर जो है सेनेट भेजा जाता है, और सेनेट जो है फिर इसमें अपनी कार्रवाई कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल जो बिल्स है उसको इनिशिएट करना या उसका इख्तियार लोअर हाउस के पास है, लेकिन चूंकि अमेरिका का सेनेट द मोस्ट पावरफुल सेनेट है पूरी दुनिया में, वो इसमें भी जो है थोड़ी बहुत टांग लड़ा सकता है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है। ठीक है, और इसको वापस जो है कांग्रेस के जो लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें भी भेजा जा सकता है कि इसको ठीक करके वापस हमारे पास भेज दे। ठीक है, अच्छा, दूसरे मुल्कों से ये कैसे डिफरेंट है? दूसरे मुल्कों से ये ऐसे डिफरेंट है कि ये तो प्रेसिडेंट की ज़ेरी निगरानी में होता है, फिर डायरेक्टर ऑफ बजट भी इसमें होता है, जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, लेकिन जो डायरेक्टर ऑफ बजट है और प्रेसिडेंट है, कोई शख्स उसको पार्लियामेंट नहीं बुला सकता कि आप आ जाएं, कांग्रेस आ जाए और हमें सफाई दे दे कि आप लोगों ने क्या किया है। सो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एज कम्पेयर टू द इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो वहाँ पर जो है इसको इवन कॉल भी किया जा सकता है, और फिर उसने सफाई भी देनी होती है और बात भी करनी है। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरा डिफरेंस जो है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल्स माइट बी initiated by the private members of the parliament। अब पार्लियामेंट है तो कोई शख्स भी पार्लियामेंटेरियन हो वो उसको इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो कैबिनेट का हिस्सा है या नहीं है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। अब इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में मिनिस्टर्स या पाकिस्तान में मिनिस्टर्स या कैबिनेट का हिस्सा जो शख्स होता है वो एक बिल को इनिशिएट कर सकता है। तो ये डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आ गया। अच्छा, कमिटीज हैव द पावर टू किल अ बिल। तो अमेरिका में ये भी है, जैसे मैंने कहा कि कमिटीज के पास भी ये इख्तियार है कि एक बिल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। ये 4 कमेटीज़ के जो फंक्शंस थोड़ी देर पहले बता दिए। जब हम इंग्लैंड में, पाकिस्तान में और इंडिया में ये काम देखते हैं तो वहाँ पर देयर इज़ नो सच एग्जाम्पल्स आर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, कि हमारे भी जो कमेटीज़ हैं वो एक बिल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। बस ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप लोग पेपर में लिख ले। सो आई होप यू विल गेट योर रिक्वायर्ड मार्क्स
और आपको आसानी से जो है मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी सी जुडिशरी सिस्टम पर भी बात करते हैं, जुडिशियल सिस्टम पर भी अमेरिका की, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद एक और टॉपिक है और वो पॉलिटिकल पार्टीज पर है, तो वो मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट देता हूँ। फिर कल से हम एक और आइन जो है शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए। तो चलो थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं उनके सिस्टम पर। सिस्टम अमेरिका का जो है फेडरेशन है, फेडरल स्टेट्स हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास सेंटर भी होता है और उसमें हमारे पास स्टेट्स भी होते हैं, या फेडरेटिंग यूनिट्स या सूबे कह ले, ये होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जब कोई मसला आ जाए स्टेट और सेंटर, सूबे और विफाक के दरमियान, तो इन दोनों को हल कौन करेगा? ये अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? अमेरिका के आईन ने ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो इसलिए द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका इज हाईली क्रूशियल। ये तो बड़ी जरूरी है क्योंकि 50 स्टेट्स है, 50। पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार भी ज्यादा है, पावर्स भी ज्यादा है, और जब भी सेंटर और प्रोविंस के पास मसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को रुजू करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में तो फिर 50 स्टेट्स हैं, तो वहां की जुडिशरी कितनी पावरफुल होगी। अच्छा, अमेरिका तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, वहां पर तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी भी है, और जुडिशरी को जो है एक इख्तियार भी हासिल है, और वो इख्तियार है अल्ट्रा वायरिस का, कि जो कानून लेजिस्लेचर पास करे या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस हो सदर की तरफ से, उसको इवन जुडिशरी रिजेक्ट भी कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दे सकती है। सही, तो ये जो है ये बड़े ज़बरदस्त पावर्स हैं जो कि अमेरिकन जुडिशरी के पास हैं। अच्छा, तो ये बस इस पर ज़्यादा क्या बात करूँ, चंद चीज़ें ऐसी है यूएसए में, हम उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक तो ये है कि जुडिशरी के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी है, चेक एंड बैलेंस ज़रूर है, उस पर हम बात भी कर चुके हैं, तो दोबारा दोहराना नहीं चाहता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब भी यही है कि जो भी ऑर्डर्स, करार दी या कानून बनाए जाएं लेजिस्लेचर की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत दिस इज द पावर विद द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो किसी भी कानून को फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद तो ये है टू डिफेंड और टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे, ना स्टेट और ना ही सेंटर। अच्छा, एक मजे की बात आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की आईन में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उस पर मैंने इम्प्लाइड पावर्स में डिटेल डिस्कशन भी की है, और वो ये है कि जब भी सूबे या स्टेट और सेंटर की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के जो है पावर में इजाफा कर दिया और एम्पावर कर दिया, और इसी तरह जो है इम्प्लाइड पावर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इख्तियारात अब सेंटर को मिल चुके हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट तो जाहिर बात है सदर करता है विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट। ठीक, सैलरीज भी ख़ास सैलरीज मिलती है, और ये एक एपेलेट कोर्ट भी होता है। मिसाल के तौर पर जब आपके छोटे मोटे कोर्ट्स में केस हल नहीं होते तो आप बड़े कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, और आपके पास आखिरी कोर्ट जो है अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको क्या आप लोग खुद एक रीड दे रहे, एंड जो फिलासफी थी आपको समझा दी कि अमेरिका में इसकी अहमियत क्या है, जुडिशियल रिव्यू पर भी बात की, और साथ में कहा कि ये क्या है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इन लोगों ने किया है,
और अमेरिका के आईन में इन लोगों ने अपना एक अहम किरदार अदा किया है और आज तक करते आ रहे हैं। सो फॉर नाउ आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को मैं जो है ये 2 टॉपिक भी असाइनमेंट हो गए, इसको तो सिर्फ एक रीड दे रहे, बाकी जो टेक्निकल चीज़ें थी, जो बेसिक पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों को समझा दिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक और टॉपिक भी है, आखिरी टॉपिक है, पेज 230 से लेकर पेज 234 तक। ठीक, 230 से 234 तक ये 4-5 पेजेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है। तो उसको खुद एक रीड दे लें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझ नहीं आए तो फिर क्वेश्चन कर लें। और जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो इसके लिए एक ख़ास जगह मैंने आप लोगों को दिया है, वहाँ पर क्वेश्चन किया करें। सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा और बाकी स्टूडेंट्स भी जो है आपका आंसर देखकर उसे भी फ़ायदा होगा। सो फॉर नाउ इट्स इनफ। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स। थैंक यू।